অৰ্থ ব্যৱস্থা নে ব্যৰ্থ ব্যৱস্থা মাত্ৰ $1 বিপৰীতে টকাই অতিক্ৰম কৰিলে 90ৰ ঘৰ কেৱল টকাই নহয় এক মাহত বাণিজ্যিক লোকচান প্ৰায় $40 আৰব দিশে যাৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পিছে মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোয়েলৰ মতে শক্তিশালী হৈ আছে ভাৰতীয় অৰ্থব্যৱস্থা কেৱল সিমানেই নহয় ভাৰতৰ পয়ালগা অৰ্থব্যৱস্থাক ঢাকি ৰাখিবলৈ বিজেপিয়ে হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ দাবী নেহৰুৱে চৰকাৰী ধনেৰে বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছিল पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया नेहरू जी ने क्या कहा जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी तरह मेरे बहन भाइयों अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है यही पंथ निरपेक्षता यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया केवल राजनैतिक स्वार्थৰ বাবে বাজুৰুলা হৈ পৰা ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থাক ঢাকি ৰাখিবলৈ বিজেপিয়ে ইতিহাসৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা এক বিষয়ক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্তমান পৰিলক্ষিত হৈছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমানেই দুৰ্বল হৈ পৰিছে যে এতিয়া $1 বিপৰীতে ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ মূল্য 90 টকাতকৈ অধিক হৈছে গুজৰাটৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 চনৰ আগতে ডলাৰৰ বিপৰীতে টকা বাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত কৈছিল যে ডলাৰৰ বিপৰীতে টকা বৃদ্ধিৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলৰ বৃহৎ লোকচান হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি আপুনি বিমুদ্ৰাকৰণ জিএছটি এই সকলোবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিলে পিছে বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে কি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ব্যৱসায়ীসকলক লৈ কি কয় এতিয়া উন্নতিৰ শিখৰত উপনীত হৈছে বুলি ক'ব নেকি আপুনি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় এফালে যদি মুদ্ৰাৰ মূল্য পতন ঘটি $1ত 90ৰো অধিক হ'ল আৰু আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে কয় শক্তিশালী হৈ আছে ভাৰতীয় অৰ্থব্যৱস্থা डॉलर मजबूत होता जा रहा है रुपया कमजोर होता जा रहा है विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं इस बोझ को सह नहीं पाएंगे इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही केवल সিমানেই নহয় ভাষণত ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই আপুনি যি কৈছিল সেয়া আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো ইমান বেগেৰে এনেদৰে কমিব নোৱাৰে টকাৰ মূল্য নেপালৰ টকা নকমে বাংলাদেশৰ মুদ্ৰা নকমে পাকিস্তানৰ মুদ্ৰা নকমে শ্ৰীলংকাৰ মুদ্ৰা কমি নাযায় কিন্তু ভাৰতীয় টকা দুৰ্বল হৈ পৰাৰ কাৰণ কি ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব দেখে আপোনালোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে मैं शासन में बैठा हूं मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है ये जवाब देना पड़ेगा आपको देश आपसे जवाब मांग रहा है এতিয়া বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ উত্তৰ কোনে দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় মুদ্ৰাস্ফীতি মূল্যবৃদ্ধি প্ৰদূষণ বিএলৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগক প্ৰাধান্য দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইতিহাসৰ কোনো তথ্য নথকা বিষয়ক লৈহে উঠি পৰি লাগিছে আপোনাৰ চৰকাৰখনে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে নেহৰুক লৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজনাথ সিঙৰ এই বক্তব্য অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক বুলি অভিহিত কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰখ্যাত ইতিহাসবিদ ইৰফান হাবিবে লগতে এজন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য কৰা উচিত নহয় বুলি কয় তেওঁ
তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কয় যে ঐতিহাসিক তথ্য নথকা কথা এটা উত্থাপন কৰাটো লজ্জাজনক। ইয়াৰ কোনো ঐতিহাসিক প্ৰাসংগিকতা নাই। আমি বুজিব পাৰোঁ যে আপুনি কেৱল বৰ্তমানৰ বাবেহে কথা কৈছে, আজিৰ বাবেহে ভাষণ দি আপুনি আজিৰ ৰাজনীতিৰ বাবে কথা কৈছে। ये स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी है, क्योंकि ये एक जिम्मेदार आदमी ने स्टेटमेंट दिया है और मैं नहीं समझता हूं कि एक डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह की फ्लिपेंट बातें करनी चाहिए। ये कार्यकर्ता करे तो कोई बात नहीं। तो अफसोस है कि आप कुछ ऐसी चीज बोल रहे हैं जिनका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, कोई उसका फैक्ट नहीं है, जिसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। ये हम समझ सकते हैं कि आप सिर्फ प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं, आज के लिए बोल रहे हैं, आज की राजनीति के लिए बोल रहे हैं, इतिहास उसमें है ही नहीं। लेकिन फिर भी इतिहास का आप हवाला देते हैं, क्योंकि नेहरू के जमाने में अगर आप ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद पब्लिक फंड से बनाना चाहते थे, पहली बात तो मस्जिद तो ऑलरेडी थी, तो वो कौन सी मस्जिद बन रही थी? तो ये एक अपने आप में बड़ा अजीब सा बयान है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों दिया गया है। और उसके बाद उसको वो आगे बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं उसको मंदिर के इश्यू से। और मंदिर एक अलग मुद्दा है, वो एक नेहरू जी ने जो पोजीशन ली थी वो एक अलग चीज थी। वो ये था कि आप पब्लिक फंड का इस्तेमाल न करें और सरकार को उस मंदिर या मस्जिद से न जोड़े, वो एक बात थी। सरदार पटेल उसमें है ही नहीं कहीं। पहली बात तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, न नेहरू जी का रिकॉर्ड है न सरदार पटेल का रिकॉर्ड है। तो ये एक अपने आप भी गढ़ा हुआ उनका एक फैक्ट है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। इसमें सिर्फ राजनीति है, इतिहास इसमें है नहीं कहीं। মুঠতে ভাৰতৰ পয়ালগা অৰ্থব্যৱস্থাক ঢাকি ৰাখিবলৈ বিজেপিয়ে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা কাণ্ডক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।